So my point is, if this change is permanent, then Europe must change permanently too. It is time to seize this opportunity and build a new independent Europe. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. ये बयान सुना ना आपने। ये बयान उन लोगों और उन देशों को करारा तमाचा है जिन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था। आज वही भारत दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी बन चुका है और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बात कह रही हैं यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट, वो भी पूरी दुनिया के सामने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से। अब उन्होंने क्या कुछ आगे कहा भारत को लेकर, जरा कान खोलकर सुनिए। That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of European independence. And this need is neither new nor a reaction to recent events. The good news is, we acted immediately, whether on energy or raw materials, defense or digital, we're moving fast. But the truth is also that we will only be able to capitalize on this opportunity if we recognize that this change is permanent. Of course, nostalgia is part of our human story, but nostalgia will not bring back the old order. But it also had two major effects. It inadvertently, so my point is, if this change is permanent, then Europe must change permanently too. It is time to seize this opportunity and build a new independent Europe. And that will not stop in Latin America. Last year we reached new. And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest-growing and most dynamic continents. Europe will always stand with Ukraine until there is a just and lasting peace. सुना ना आपने, उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स। और सबसे मजेदार बात क्या है, यह बयान ऐसे समय आया जब डोनाल्ड ट्रंप भी दावोस में बोलने वाले हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ ट्रेड डील है या फिर यह ट्रंप को सीधा मैसेज है, और क्या सच में इंडिया अब ग्लोबल ट्रॉफी बन चुका है। दरअसल उर्सुला वॉन डेर ने साफ कहा कि नेक्स्ट वीक आई विल ट्रेवल टू इंडिया। That geopolitical shocks can and must serve as an opportunity for Europe. And in my view, the seismic change we are going through today is an opportunity, in fact, a necessity, to build a new form of European independence. And this need is neither new nor a reaction to recent events. The good news is, we acted immediately, whether on energy or raw materials, defense or digital, we're moving fast. But the truth is also that we will only be able to capitalize on this opportunity if we recognize that this change is permanent. Of course, nostalgia is part of our human story, but nostalgia will not bring back the old order. But it also had two major effects. It inadvertently, so my point is, if this change is permanent, then Europe must change permanently too.
It is time to seize this opportunity and build a new independent Europe. And that will not stop in Latin America. Last year we reached New York, and right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first-mover advantage for Europe with one of the world's fastest-growing and most dynamic continents. Europe will always stand with Ukraine until there is a just and lasting peace. अब जरा ध्यान दीजिए उनके शब्दों पर। 2 बिलियन लोगों का मार्केट, ऑलमोस्ट 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट डायनेमिक इकोनॉमी इंडिया। दोस्तों, ये कोई साधारण एफटीए नहीं है, ये 18 साल पुरानी बातचीत का नतीजा है। जब ये चर्चा शुरू हुई थी तब पैदा हुआ बच्चा आज वोट डालने लायक हो चुका है और अब जाकर ईयू कह रहा है वी गॉट द ट्रॉफी। आज दुनिया की 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहला, यूएस के साथ टैरिफ पॉलिसी, दूसरा चाइना के साथ सप्लाई चेन प्रेशर और तीसरा रशिया के साथ जियोपॉलिटिकल रिस्क। और इन तीनों के बीच अगर कोई स्टेबल, डेमोक्रेटिक, फास्ट ग्रोइंग पार्टनर है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। यही वजह है कि ईयू एक्साइटेड है, यूएस नर्वस है और चाइना अलर्ट है। आज इंडिया के साथ ट्रेड डील करना सिर्फ बिजनेस नहीं, ग्लोबल स्टेटस सिंबल बन चुका है। अब आते हैं असली खेल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब यूएस ईयू डील किया था तो उन्होंने कहा था कि बिगेस्ट डील एवर, ग्रेटेस्ट डील एवर, और आज वही ईयू कह रहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स। मतलब साफ है, योर डील वाज बिग, आवर डील इज बिगर। और जब उर्सेला कहती हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो वो सीधे डोनाल्ड ट्रंप को बोल रही हैं कि जब तक तुम्हारी कंपनियां आएंगी तब तक हम इंडिया में जड़ें जमा चुके होंगे। सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, टेक, सब में ईयू पहले से घुस चुका होगा। ट्रंप की दुनिया जीरो सम गेम की है। उनके हिसाब से अगर ईयू जीत रहा है तो यूएस हार रहा है। विन विन जैसी कोई चीज ट्रंप की डायरी में नहीं होती है। यही वजह है कि अगर ईयू को इंडिया मार्केट मिला तो ट्रंप इसे पर्सनल लॉस की तरह देखेंगे। अब यहां पर उर्सेला ने एक और बड़ा मैसेज दिया कि यूरोप बिलीव्स इन पार्टनरशिप्स नॉट प्रेशर, फेयर ट्रेड ओवर टैरिफ। ये लाइन सीधा सीधा अमेरिका फर्स्ट और टैरिफ पॉलिसी पर हमला है। ईयू कह रहा है कि हम धमकी देकर डील नहीं करते, हम डराकर मार्केट एक्सेस नहीं लेते हैं, हम विन विन पार्टनरशिप बनाते हैं और इंडिया इसी मॉडल को पसंद करता है। ट्रंप ने इंडिया को कहा था डेड इकोनॉमी, लेकिन आज सच्चाई यह है कि आईएमएफ ग्रोथ फास्टेस्ट कंट्री है भारत, 7.3% के साथ मैन्युफैक्चरिंग बूम है भारत में, सर्विस एक्सपोर्ट बढ़ा है, सप्लाई चेन अल्टरनेटिव टू चाइना बन चुका है। साल 2030 तक इंडिया अपर मिडिल इकोनॉमी कंट्री बन जाएगा और 2047 तक हाई इनकम इकोनॉमी वाला देश। तो सवाल यह है कि डेड इकोनॉमी कौन है और ग्लोबल पावर हाउस कौन है। ईयू आज दबाव में है, यूएस से ट्रेड को लेकर, चाइना से स्ट्रेटेजिक रिस्क को लेकर और रशिया से एनर्जी शॉक को लेकर। और ऐसे में इंडिया स्टेबल, डेमोक्रेटिक, लॉन्ग मार्केट और यंग वर्कफोर्स है। यही वजह है कि उर्सेला इतनी एक्साइटेड दिख रही हैं भारत आने के लिए। और ये सिर्फ ट्रेड डील नहीं होगी बल्कि ईयू का स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल प्लान भी है। आज की दुनिया में इंडिया इज नॉट चेसिंग डील्स, डील्स आर चेसिंग इंडिया वाला रूल बन चुका है। ईयू इंडिया ट्रेड डील ग्लोबल ऑर्डर को रिशेप करने वाला है। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है बल्कि ये जियोपॉलिटिक्स, पावर बैलेंस और 21वीं सेंचुरी लीडरशिप की कहानी है। और हाँ, जिसे ट्रंप ने डेड इकोनॉमी कहा था, आज वह इकोनॉमी मदर ऑफ ऑल डील्स साइन करने जा रही है।